हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th matrices. Okay, introduction of matrices. Keep this in mind, there is a word used, matrix, matrix. Some people call it or pronounce it as matrix. So matrix is also correct, matrix is also correct. Okay, it is singular. It is what? Singular form. When it becomes plural, it becomes what? Matrices. So matrix is singular and matrices is what? Plural of the same. Okay. Now, what is a matrix or what is a matrix? A rectangular arrangement. What I have done, I have made it very simple. In the book, it is written in the complicated way, but I have written very simple so that it will be easy for you to learn and write in the paper. This will come in your definitions. Keep this in mind. Okay, this is important. So learn it from here. Give example till this, and this is you are going to get 2 out of 2. During this discussion, I'll be talking about definition of matrix, then elements, then caption, then rows, columns, order, and equal matrices. Okay, so you can just go ahead. It should be matrices, equal matrix, equal matrices. Okay, now so we are going to discuss first of all definition matrix. Okay, what is definition of matrix? A rectangular arrangement. Arrangement का मतलब क्या होता है? तरतीब. ओके, उनको इस फॉर्म में लिखना. ओके, a rectangular arrangement फॉर्म में लिखने से वो क्या बन गया? फॉर्मेशन. a rectangular formation बन गई. ठीक है, अरेंजमेंट, फॉर्मेशन या अरे. अरे का मतलब क्या होता है? तरतीब देना, अरेंजमेंट देना, फॉर्मेशन देना. इसलिए मैंने इन तीनों को आसान वाले को पहले लिख दिया और इनको थोड़ा सा साइड पे लिख दिया. ओके, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यू कैन लिसन माय और गो टू वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड अबाउट numbers. There I have explained real numbers in detail. You can visit that site. Okay, so of real numbers, okay, arrangement of real numbers written within square brackets. ये लाजमी है, इसमें आपने पैरेंथेसिस नहीं लगानी. ठीक है, पैरेंथेसिस होता है छोटी वाली ब्रैकेट, ये नहीं लगानी. ठीक है, और ये भी नहीं लगानी कर्ली ब्रैकेट. ये ठीक है. ठीक है, मैट्रिक्स इस तरह से नहीं लिखना. ये बात, मैट्रिक्स को इधर भी नहीं लिखना और इस तरह से ओके है. ये सही तरीका है. मैट्रिसेस को ना ये ब्रैकेट यूज करते हैं ना ये करते हैं, बल्कि बस ये यूज करते हैं. डन. ओके, सो आई हैव डन व्हाट आई हैव डिफाइंड मैट्रिक्स इन द वेरी सिंपलेस्ट वे. आई हैव रिटन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. इट मींस व्हेन यू राइट समथिंग इन स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल sort of what you can say formation or array, then it becomes a matrix if it is written within the square brackets. What is compulsory? That should be written in the square brackets. So what I have done, I have written simply example a equals to a b c d. Okay, you will say, oh, these are not real numbers, these are alphabets. Okay, it can come also. Okay, got this idea? Now so definition is done. Elements, whatever I have written inside the square bracket, whatever I have written inside this square bracket, that becomes elements. So elements of matrix A are, what are the elements? A, B, C, D. A, B, C and D. डन होगी बात. ये उसके क्या बन गए? एलिमेंट्स बन गए. हो सकता है इस पर लाइट आ गई हो तो आपको मेरी वर्ड से समझ लग जाएगी मैंने क्या लिखा. आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना क्योंकि बल्ब की रोशनी हो सकता है इस पर आ गई हो. ओके, नाउ नेक्स्ट. मैट्रिक्स सिंगुलर में कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिसेस या मैट्रिसेस भी कहते हैं. ठीक है, प्लूरल में. क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट. अब आगे कैप्शन. ये जो कैप्शन है ये क्या चीज होती है? कैप्शन होता है उसकी सिंबल. ठीक है, उसका नाम समझ लो आप. ठीक है, तो हमने इसको क्या किया? कैप्शन क्या है इसकी लिखी हमने? ए. तो कैप्शन ऑफ मैट्रिक्स ए, कैप्शन ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ए है. क्या है कैप्शन उसकी? ए है. डन. उसके बाद आ गया रोज. जो भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे होते हैं, अब इसको रब कर लेते थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए.
मैट्रिक्स के लिए कौन सी ब्रैकेट आदमी, स्क्वायर ब्रैकेट। आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा वो नहीं लगानी, ना कर्ली लगानी है, ना पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। डन। ओके, अब आगे जी रोज। रोज क्या आती है, ठीक है, ये होते हैं आपके पास एलिमेंट्स रिटन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर्म रो of that matrix। क्या मैंने लिखा जी, एलिमेंट्स रिटन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म कह लो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन कह लो, ठीक है, एलिमेंट्स रिटन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर्म मतलब बनाते हैं, ठीक है, रो ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब इसके क्या है, सो ए हैज टू रोज, ये कितनी रोज है, दो, फर्स्ट रो, रो को किससे लिखते हैं, एम से। फर्स्ट रो इसकी क्या है, ए बी, फर्स्ट रो क्या है, ए बी, ठीक है। सेकेंड रो इसकी क्या है, सी डी, ठीक है। जो फर्स्ट रो है कौन कौन से बना रहे हैं, ए और बी मिलके बना रहे हैं, और जो सेकेंड रो है उसके क्या एलिमेंट्स है, सी और डी। डन। अब कॉलम क्या आता है जी, एलिमेंट्स रिटन इन वर्टिकल पोजीशन फॉर्म कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब आप कहोगे जी ये क्या लिख दिया, ये देखो, ये एम ए टी आर आई, आर है, आई एक्स है, ठीक है। तो ये हैंडराइटिंग में इशू है, आप यूज टू हो जाओगे इसके। ओके ना, क्लियर हो गई बात। अब इसके क्या है, सो फर्स्ट कॉलम हैज ए सी, ठीक है, टू एलिमेंट्स, और जो सेकंड कॉलम है इस बी डी, समझे बात, ये इसका सेकंड कॉलम है। डन होगी बात, ठीक है, ये इसका सेकंड कॉलम है, बी और डी, और ये उसका सी। तो रो क्या बनी, व्हेन यू लाई डाउन ऑन द बेड यू फॉर्म अ रो। जब आप बेड पे लेट जाते हो तो आप क्या बनाते हो, रो बनाते हो, ठीक है। और जब आप खड़े हो जाते हो जमीन पे या बेड पे तो आप क्या बनाते हो, उसको कॉलम। तो कॉलम हमेशा इधर को आएगा और रोज हमेशा इधर को आएंगी, ठीक है। अब 1.1 आपकी जो सारी है उसको आप आगे अगली वाले वीडियोस में देख सकते हो, सारा ये कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो भी आप समझना चाहते हो वो लिख के भेजो। कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी ये सारी बुक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है, फिजिक्स के लेक्चर्स भी और मैथ्स की भी जल्दी से जल्दी बुक को आपके लिए अपलोड किया जाए ताकि आप इधर से पढ़ सको। फिर मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कोशिश करके उनकी जो कमाई है उसको यूज़फुल पर्पज़ में ज़ाया ना करो बल्कि फ़ायदा उठाओ, ठीक है। यूज़फुल पर्पज़ में यूज़ करो बजाय ज़ाया करने के। रुके तो पढ़ोगे, मेहनत करोगे, कामयाब होगे। कल को आप पढ़े लिखे होगे तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कल को आपके बच्चे शर्मिंदा होते फिरेंगे आपको इंट्रोड्यूस कराने में। इसके अलावा और भी बड़ी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी होती है, आप देखा करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें, ठीक है। तो कोशिश किया करो जब भी करते हो तो अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, जो भी बात करना चाहते हो किया करो, ठीक है। इंग्लिश उर्दू किसी भी वर्जन में समझना चाहते हो तो आई कैन स्पीक बोथ, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो।